अगर मैं आपकी जगह होता तो मैं तो सीधा कह देता आपने मुझे फ्री कैमरा दिया है जिसके कारण मैं शूट कर रहा हूँ। So hey guys, today I have a very special person, a college girl who has already gone viral on LinkedIn and आपने उनकी वीडियो YouTube पे पहले ही देखी होगी because she is already viral on YouTube as well. But now we're gonna look at a different dimension of her story कि कैसे एक बच्चा Tier 3 से कैसे Tier 1 से compete करके Amazon या FAANG कंपनीज में पहुंच सकता है. So first of all, अंशिका आपने मतलब पहले बहुत बार बताया होगा कि आप कैसे पहुंचे. So little bit short summary कि आपकी जर्नी Amazon तक कैसे थी. So my name is Anshika Gupta and I am currently doing BTech in Computer Science and Engineering from Madan Mohan Malviya University of Technology. I applied at Amazon through a contest called Amazon Wow, and after clearing this contest, I got the call for interview from Amazon. You can say luckily and through my hard work, I cleared these 4 technical rounds of Amazon and I have finally got an offer from Amazon as a software development engineer. Wow. So before we talk about behavioral round of the interview and technical round of the interview, I really want to tell कि US में Tier 1, 2, 3 and 4 matter ही नहीं करता. It doesn't exist at all. मतलब even less than 1% of the students may be talking about it, पर मैंने ज़िंदगी में आज तक नहीं सुना कोई कहते कि तू MIT गया, तू हार्वर्ड गया, तू मतलब IIT गया, तू Tier 1 गया, Tier 2, Tier 3, Tier 4. It doesn't exist at all. क्योंकि आप देखोगे US में even students without any college degree are like software engineers making more than $100,000 a year. तो कभी पूछते ही नहीं है जब कोई कंपनी में काम कर रहा है तो कौन से कॉलेज से है कौन से मतलब it doesn't exist at all. But what about in India? Does Tier 1, 2 and 3 matters? So what I feel Harshnoor is कि जो tier का difference हमारा आता है वो सबसे ज़्यादा आता है that if you are from a good college आपके colleges में बहुत सारी companies आ रही हैं. Second thing is that कि peer का डिफरेंस होता है लाइक अ स्टूडेंट फ्रॉम अ गुड कॉलेज हैज़ अ सराउंडिंग जहाँ पे लोग ऑलरेडी कोडिंग कर रहे हैं. इफ़ ही इज़ हैव अ प्रॉब्लम वो किसी से डिस्कस कर सकता है और बेसिकली वो चीज़ वो peer की होती है दैट एवरी वन अराउंड देयर इज़ अवेयर ऑफ, जो कि आप अगर नीचे जाते हो कॉलेजेस में तो वो चीज़ नहीं आती है. बट अपार्ट फ्रॉम दिस टू डिफरेंस व्हेन यू आर अप्लाइंग फॉर एनी कंपनी लाइक एनी बिग टेक जाइंट्स आउट देयर, उनके लिए ये चीज़ मैटर नहीं कर रहा कि आप किस कॉलेज से हो टिल द पॉइंट व्हेन यू आर हैविंग अ स्किल टू शोकेस देम. तो इवन इफ यू आर फ्रॉम अ लो टियर कॉलेजेस ये चीज़ मत लो कि हाउ आई कैन अप्लाई टू द कंपनी. सिर्फ यू हैव टू स्किल योर सेल्फ एंड आफ्टर दैट यू कैन अप्लाई एंड यू विल बी डेफिनेटली गेटिंग सेलेक्टेड. Yes, I completely agree because आप अपना peer group खुद बना सकते हो. For example, in cities like Hyderabad, Delhi, Chennai, इतने ज़्यादा competitions होते हैं. You can go there and participate and team up with great students. So कहीं से भी हो सकते हैं. They can be from all over the world and then finally make the most impactful projects. And जब आप interview के लिए जाओगे, then you will all be at the same level, चाहे आप किसी भी tier से हो. So being a Tier 3 grad, आपने क्या सोचा था कि आप 4 साल बाद कहाँ पे place होगे और आपकी सैलरी कितनी होगी? ओके, टू बी फ्रैंक हमेशा से सोचा था कि Amazon, माइक्रोसॉफ्ट इन बड़ी कंपनीज में काम करूंगी, बट ये चीज़ कभी क्लियर नहीं थी कि डायरेक्ट कॉलेज के बाद इन कंपनीज के साथ काम करने का मौका मिलेगा. कॉलेज के बाद माई एक्सपेक्टेशन वॉज कि अगर किसी स्टार्टअप में जॉब मिल जाता है लाइक 10-12 लाख अगर वो पे कर रही है तो दिस इज गुड. बट व्हेन आई गॉट दैट अपॉर्चुनिटी फॉर Amazon, आई मेड श्योर कि आई गिव माई 200% so that just from college I land in this company. Mind blowing. It definitely shows कि with the help of hard work, dedication and passion आप किसी भी यूनिवर्सिटी से हो you can definitely reach there. Similarly आपके कॉलेज से भी कई लोग जो Microsoft, FAANG कंपनीज में काम कर रहे हैं उन्होंने भी इसी हार्ड वर्क से दिखा दिया and they are inspiration for us. So what do you think the resource that helped you the most to clear the interview? चाहे वो लीड कोड था या गिग्स को या क्या आपने यूज़ किया सबसे ज़्यादा? ओके, सो मेरे केस में हरनूर आई हैव मच प्रैक्टिस्ड ऑन गीक्स फॉर गीक्स. मैंने अपने प्रिपरेशन में गीक्स फॉर गीक्स बहुत ज़्यादा यूज़ किया था. बट इफ़ आई पर्सनली सजेस्ट टू समवन, लीड कोड इज़ ऑल्सो अ वेरी गुड साइट. लाइक गीक्स फॉर गीक्स पे क्या है कि आपके पास बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस होते हैं. सो आपके पास अगर टाइम कम है और आप उतने में अगर गीक्स फॉर गीक्स टारगेट करोगे तो वो थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है. तो यू कैन गो फॉर साइट लाइक लीड कोड जहाँ पर स्पेसिफिक क्वेश्चंस हैं एज वेल एज फिल्टर्ड एंड क्यूरेटेड है. गीक्स फॉर गीक्स के बारे में मैं एक चीज़ रिकमेंड करूंगी, लाइक अगर आपका कोई इंटरव्यू शेड्यूल्ड है, बहुत बच्चों ने मुझसे बोला कि मैम मेरा Amazon का इंटरव्यू आने वाला है या गोल्डमैन सैक्स का आने वाला है, तो इन दैट केस व्हाट यू कैन डू इज आप 1 month 2 month प्रायर आप गीक्स फॉर गीक्स से उस कंपनी का इंटरव्यू एक्सपीरियंस पढ़ सकते हो. लाइक देयर आर लॉट ऑफ इंटरव्यू एक्सपीरियंस देयर जिसको आप पढ़ोगे तो यू विल गेट एन आइडिया ऑफ कि ये किस पैटर्न पे क्वेश्चंस पूछते हैं
एंड ऑल्सो अ वेरी गुड क्वेश्चन सेट जो आप प्रैक्टिस कर सकते हो. ये आपको मैंने बताया गीक्स फॉर गीक्स और लीड कोड का, जहाँ पे पूरा आपको DSA के क्वेश्चंस मिल रहे होंगे. अपार्ट फ्रॉम दैट मेक श्योर कि आप कॉम्पिटेटिव प्रोग्रामिंग थोड़ा करो, क्योंकि इफ़ यू डू दैट देन ओनली जो आपका वो फर्स्ट रिटन राउंड होगा यू विल बी एबल टू क्लियर दैट. तो उसके लिए भी आई हैव डिस्कस्ड वेरियस रिसोर्सेज ओवर देयर ऑन माई इंस्टाग्राम एंड लिंक्डइन प्रोफाइल, जो आप एक बार विजिट करके देख सकते हो. बट ऑन द अदर हैंड आई वांट टू डिसएग्री कि लीड कोड में भी बहुत ज़्यादा क्वेश्चन होते हैं. फॉर एग्जांपल आप बताना कितने क्वेश्चन आपको टैकल करने पड़े लीड कोड पे. लीड कोड पे अगर आप अराउंड देखोगे तो 1400 अराउंड क्वेश्चंस होंगे इस वक्त. व्हाट आई थिंक, यस 1400 अराउंड. So that's the reason I have been using Algo Expert rather than Lead Code, क्योंकि उसमें क्वेश्चंस कम होते हैं एंड क्वालिटी क्वेश्चंस होते हैं जो ज़्यादा प्रिपरेशन करा सकते हैं. ऑन द अदर हैंड वहाँ पे वीडियोस एक्सप्लेनेशन होती है कि मतलब इफ़ यू वांट टू टैकल दिस क्वेश्चन, अगर आप इंटरव्यू में टैकल कर रहे हो तो किस तरीके से आप वीडियो में एक्सप्लेन कर सकते हो कि क्वेश्चन कैसे एक्सप्लेन करना है. नाउ लेट्स टॉक अबाउट द इंटरव्यू प्रोसेस. अब मान लेते हैं कि 2 तरीके होते हैं अमेजोन जाने में. या तो आप किसी कॉन्टेस्ट किसी टेस्ट के थ्रू पहुंच सकते हो इंटरव्यू प्रोसेस में. नंबर 2 वे इज की रेफरल. आपका कोई फ्रेंड अमेजोन में काम कर रहा है या थ्रू लिंक्डइन कनेक्शंस यू कैन गेट रेफरल एंड देन फाइनली गेट an opportunity to be at Amazon. अब बात करते हैं यूएस में. यूएस में मुझे पता है कि अगर आपको एक इंटरव्यू अपॉर्चुनिटी मिले Amazon में काम करने के लिए, फर्स्ट राउंड होता है फ़ोन कॉल या एक बिहेवियरल राउंड जो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जिससे आप आपकी पर्सनैलिटी जज करते हैं कि इज इट लाइक अ गुड वेल स्पोकन गाय हु कैन वर्क इन अ कंपनी और नॉट. तो अब वो राउंड रेप्लिकेट करने से पहले आप बताना कि इंडिया में ऐसा कुछ राउंड होता है कि नहीं. Okay, so when I got the call for the Amazon interview, nothing like this held. Like they didn't ask me questions like this, any behavioral question. She just informed me that okay, ये interview होने वाला है and ऐसे ऐसे process होने वाला है. So nothing at that time any behavioral question was asked, but definitely throughout your interview, kind of behavioral questions will be asked always. Like you can expect it in any round of that. बट यूएस में प्रोसीजर डिफरेंट होता है बिकॉज हर बार फर्स्ट राउंड हमेशा बिहेवियर राउंड ही होता है इन मोस्ट ऑफ द केसेस. क्योंकि मैंने अब तक 10 to 20 इंटरव्यूज दी हैं लाइक इन कंपनीज लाइक माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, नेटफ्लिक्स एक्सेट्रा. तो वहाँ पे पहले राउंड में पूछते हैं आपकी पर्सनैलिटी के ऊपर. सो लेट्स ट्राई टू आस्क दोज क्वेश्चन. तो मेरे एक्सपीरियंस से जितने भी क्वेश्चन पूछे, लेट्स ट्राई टू आस्क कि आपको ऐसे क्वेश्चन पूछे गए थे कि नहीं एंड हाउ वुड यू आंसर दैट. सो लेट्स ट्राई टू मेक इट लिटिल बिट मॉक इंटरव्यू स्टाइल. सो दिस इज Amazon speaking and it is a pleasure to invite you to our on-site interview. But before that, I would like to know, why do you really want to work at Amazon? So I would like to work at a company where engineers are very passionate about their work and also put the customer as their first priority. Like this whole concept of Amazon, I'm so much excited about this principle of Amazon and to work at a company where values like this are preached. अगर मैं आपकी जगह होता तो मैं तो सीधा कह रहा था आपने मुझे फ्री कैमरा दिया है जिसके कारण मैं शूट कर रहा हूँ. सो डेफिनेटली आई वांट टू रिटर्न द वैल्यू यू हैव एडेड टू माय लाइफ. आई वांट टू रिटर्न. तो हर इस इंटरव्यू के क्वेश्चन में गोल ही होता है कि आपको बताना है कि जैसे कि अगर मैं एनसीआर में काम कर रहा हूँ, मैं ही बताता हूँ कि जब भी मैं वॉलमार्ट जाता हूँ, व्हेनेवर आई यूज़ दिस सिस्टम्स आई लव इट एंड आई लव द एक्सपीरियंस कि मुझे मतलब सेल्फ चेकआउट करके मुझे मतलब लाइन में नहीं खड़ा होना पड़ता. सिंपली आई स्कैन माई प्रोडक्ट एंड गो. तो मैं बताता हूँ कि NCR or the company where I'm going to work has added a lot of value in my life and I want to return that. तो आपने आंसर बिल्कुल सही किया, यही गोल होना चाहिए. Now let's move on with the next question that requires star approach. तो star approach के बारे में आप सबसे पहले बताना कि ऐसा कोई क्वेश्चन पूछा जाता है या फिर star approach होती क्या है. ओके हरमून, तो ये चीज़ बिल्कुल सही है. देयर इज़ अ स्टार पैटर्न विच इज़ फॉलोड फॉर आंसरिंग बिहेवियरल क्वेश्चंस. लाइक स्टार पैटर्न में क्या होता है, S स्टैंड फॉर सिचुएशन, T फॉर टास्क, A फॉर एक्शन एंड R फॉर रिजल्ट. लाइक आप मुझसे कोई क्वेश्चन पूछो एंड मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी कि स्टार पैटर्न से उसको कैसे आंसर करते हैं. So US में भी ऐसे ही होता है. But now let me ask you the question that I have been asked in most of my interviews. So tell me about the situation in which you had a teammate who didn't want to work at all or who didn't want to put any work towards the project. बस वो क्रेडिट लेने आया था और नंबर लेने आया था आपके हार्डवर्क के बेसिस पे. So how did you motivate to work and finish the project? So there was a situation when I, along with my 3 other teammates, were working on a project. What happened was there was a teammate, as you said, he was not ready to work. So what I did was that in order to expect much and more from him, I just divided the whole task into small subtasks and allotted that small subtask to him and gave him a deadline that you have to complete this small subtask within this deadline. And when he got that small subtask, he was able to do that and also within the deadline. So like that, we completed our whole project and at the end, he also learned many things through the project and our project was also very good.
एक्सीलेंट। ये मेरे साथ भी कई बार हुआ है इन क्लास प्रोजेक्ट्स या हैकेथॉन्स, जब बच्चे आते हैं प्राइज लेने के लिए, ना कि काम करने के लिए, प्राइज लेके भाग जाते हैं। सो दिस इज द कम्प्लीटली रिलेटेबल सिचुएशन। सो दीज वर सम ऑफ द बिहेवियर क्वेश्चन और बिहेवियर एस्पेक्ट ऑफ द इंटरव्यू। नाउ लेट्स मूव ऑन विद द टेक्निकल एस्पेक्ट। तो आप बताना कि टेक्निकल एस्पेक्ट में मेरे ख्याल से 4 राउंड्स होते हैं यूएस पे, तो इंडिया में भी 4 ही होते हैं? नो एग्जैक्टली, इंडिया में भी वही 4 राउंड्स होते हैं। वो चारों के चारों राउंड्स आर टेक्निकल। उनमें आपसे डीएस एल्गो के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। यू नीड टू एक्सप्लेन द लॉजिक, देन यू कोड। इसके अलावा दे फोकस अपॉन योर प्रोजेक्ट्स, इंटर्नशिप, कंप्यूटर साइंस फंडामेंटल्स, लाइक यू कैन गो फॉर ऑपरेटिंग सिस्टम, डीबीएमएस, ऊप्स, कंप्यूटर नेटवर्क, सब्जेक्ट लाइक दिस। एंड उसके अलावा जो थोड़े बहुत बिहेवियरल क्वेश्चंस वी हैव डिस्कस्ड, ये चीजें। ओके, परफेक्ट। सो स्टार्टिंग विद द फर्स्ट टेक्निकल राउंड, तो मैंने सुना है कि जो डिफिकल्टी लेवल हौली हौली इंक्रीज होता है। सो आपको स्टार्ट करते हैं एरेज से, डेटा स्ट्रक्चर से, लेटर ऑन दे गो ऑन विद ट्रीज, साइकिल्स एंड सो ऑन। आपका कैसा हुआ था ओवरऑल डिफिकल्टी लेवल ऑल 4 राउंड्स में? ओके हरनूर, मेरा यहाँ पे पर्सनल ओपिनियन है कि व्हाट आई फेल्ट वाज कि ऐसा कुछ भी नहीं था कि फर्स्ट राउंड इजी था फिर उसके बाद से धीरे धीरे डिफिकल्टी लेवल ऊपर जा रही थी। व्हाट आई फेल्ट वाज कि सारे राउंड्स ऑलमोस्ट सेम लेवल के थे। पर्सनली जब बार रेजर राउंड था दैट वाज लिटिल बिट डिफिकल्ट, बट मुझे ऐसा फील नहीं हुआ कि डिफिकल्टी लेवल इंक्रीज हो रही थी। लाइक फ्रॉम माई पर्सनल एक्सपीरियंस इफ आई कैन से, सो द मोस्ट ईजिएस्ट क्वेश्चन एज टू मी वॉज द लास्ट राउंड क्वेश्चन। वो सबसे आसान क्वेश्चन था जो मुझसे चारों राउंड्स में पूछे गए थे। तो सो आई कांट से दैट कि मतलब डिफिकल्टी लेवल इंक्रीज हो रहा होगा। वाओ। और कोई ऐसा क्वेश्चन था जिसने आपको हिला के रख दिया, लाइक दैट शॉक्ड यू, और थोड़े आप मतलब डर गए थे इस क्वेश्चन के कारण? यस ऑब्वियसली इसमें एक बहुत अच्छा इंसिडेंट था। जब थर्ड राउंड में इंटरव्यूअर ने मुझसे एक क्वेश्चन पूछा, दैट वॉज एग्जैक्टली द सेम क्वेश्चन जो मैं पढ़ रही थी। लाइक व्हेन आई वॉज प्रिपेयरिंग, मैंने वो क्वेश्चन देखा एंड आई स्किप दैट, सेइंग कि यार ये क्वेश्चन थोड़ा टेढ़ा है, ऐसे थोड़ा ना इंटरव्यू में पूछेंगे। तो हल्के में ले लिया, मैंने सॉल्यूशन देखा, मैंने कहा समझ नहीं आ रहा, मैंने छोड़ा, हटाओ, नहीं पूछ रहे, इंटरव्यूअर नहीं पूछ रहा, मैंने हटा दिया वो सवाल। एंड इन द थर्ड राउंड व्हेन इंटरव्यूअर आस्क्ड मी, मेरा पहला 1 मिनट वॉज इन होल रिग्रेट। काश मैंने ये पढ़ा होता यार, काश मैंने ये क्वेश्चन किया होता। मतलब मेरा पूरा 1 मिनट तो ऐसे ही चला गया। फिर 1 मिनट बाद आई वॉज इन सेंसेस कि कोई बात नहीं, मैंने नहीं पढ़ा है तो भी मैं क्वेश्चन आज यहीं करूँगी, पहली बार करूँगी। मैंने वो चीज़ दिमाग में लाया। देन आई स्टार्टेड अप्रोचिंग टू अ सॉल्यूशन जो कि बहुत स्टैंडर्ड सॉल्यूशन नहीं था, विच यू विल नॉट सी ओवर गिग्स फॉर गिग्स और लीड कोड एनीवेयर। लाइक नया नहीं था, बट ऑब्वियसली वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड था क्योंकि मुझे एग्जैक्ट अप्रोच पता नहीं था। बट द थिंग वॉज इन माई माइंड कि मेरे को एक वर्किंग सॉल्यूशन एनी हाउ लेकर आना है। When I told the interviewer that approach, interviewer was कि वर्क करेगा। I said yes sir, ऐसे ऐसे करके वर्क करेगा। After that he told me to code and also I explained him कि सर ये क्वेश्चन मैंने पहले देख रखा है, I know कि इसका एक ऑप्टिमाइज सॉल्यूशन होता है and even I can do that if you give me a little bit time. But क्योंकि interviewer was, I think he was satisfied with my answer, he told me कि it's okay, no needed. So one thing this you can take, I mean you can take an advice from me कि अगर वहाँ पे कोई क्वेश्चन ऐसा आ रहा है जो आपने पहले नहीं देखा है तो घबराओ मत। मेक श्योर कि वहीं पे सोचेंगे, लाइक स्टार्ट फ्रॉम ब्रूट फोर्स, एकदम धीरे धीरे वी कैन मूव टू द ऑप्टिमाइज सॉल्यूशन। एंड इंटरव्यूअर्स आर वेरी फ्रेंडली, दे विल ऑब्वियसली हेल्प यू थ्रू आउट द प्रोसेस। परफेक्ट। और मेरी एडवाइस होगी कि चाहे आप एल्गो एक्सपर्ट यूज़ कर रहे हो, लीड कोड कर रहे हो, अगर आप एक सेक्शन पकड़ते हो ना लिंक्ड लिस्ट का, जैसे दैट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन, तो पूरा सेक्शन कंप्लीट करो ताकि ये ना फीलिंग आए कि टैक्सी गेट पे थी, लेटर हाथ में था। अगर वो क्वेश्चन भी कर लिया होता तो सारी जिंदगी कुछ और होती। सो दैट्स वाई कंप्लीट द सेक्शन दैट यू हैव स्टार्टेड, ताकि वो सेक्शन कंप्लीट हो जाए। और क्योंकि आई एम प्रीटी श्योर दैट लिंक्ड लिस्ट, स्टैक्स, queues and also trees are one of the most important questions that they will definitely ask, right? Yes. I think for Amazon, if I can say, the most asked question to me was from binary tree. Got it. So now as the behavioral interview and the technical interview is over, every interviewer is going to ask you, do you have any questions? तो मैं भी पूछता हूँ आपसे। तो मैं अपने इंटरव्यू एक्सपीरियंस से ये चीज़ शेयर कर रही हूँ कि इंटरव्यूज़ में पहले आपसे जब भी इंटरव्यूअर पूछते हैं एनी क्वेश्चन तो नो मत बोलो। दैट शोज योर डिसइंटरेस्ट, लाइक आप कंपनी के बारे में जानने में इंटरेस्टेड नहीं हो, तो नो हमें नहीं बोलना है। सेकेंडली, मैंने अपने इंटरव्यू में ये क्वेश्चंस पूछा था कि सर बेस्ड अपॉन दिस इंटरव्यू कैन यू गिव मी एनी फीडबैक। तो इंटरव्यूअर ने मुझे वहाँ ये चीज़ बोली थी कि नो दिस इज़ नॉट अलाउड, HR विल डायरेक्टली सेंड यू अ मेल। तो ये चीज़ भी हमें अवॉइड करनी है, अपने फीडबैक्स हमें नहीं लेने हैं इंटरव्यू के एंड में।
But preferably what you can ask is something like this, कि sir, how has your role changed since you have joined Amazon? Like you have to show that you are interested in knowing the work culture of a company as well as knowing about the company. Like you are interested in working for a company. This all things if you show, then it creates a good impact. Absolutely agree. And मैंने personally अपने last 10 interviews में हमेशा ही पूछा है what type of challenges a software engineer at Amazon, Microsoft faces in day-to-day life. तो ये हमेशा मैं repeat करता हूँ and that actually shows a lot of interest. And वो अच्छा से reply करते हैं, then I follow one more question and then that's the end of the interview. And now last final tips you would like to give out to some of the students before we wrap up. So students out there, I suggest you कि if you are targeting at these companies, please make one thing in mind that these companies are not looking for a robots. What they try to see is that you have a thinking capability, you have some skills required for that profile. So if you are applying for a software developer profile, you can focus upon data structures, algorithms, practice upon various online coding platforms over there. Also, I suggest do some CP because that will help you in clearing the first round. Make some good decent projects, as without projects if you go, it creates a negative impact that what you have done in your 4 years of college. So obviously make some projects and just this, be confident, be loud enough in the interview, think with the interviewer, do not murmur over there. And just this, be confident and definitely you will ace the interview. Perfect. Thank you so much, Anshika, for sharing a valuable information. And remember to follow her on LinkedIn and Instagram. She's already sharing a lot of technical content already on these platforms. So remember to do that. So thank you so much. Thank you.